नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम and I hope you all are fine. Now students, in today's video we are going to start exercise 11.2 in which we will solve all the question of exercise 11.2. The first question is find the value of x when the value of cos x is the given value is cos x and we have to find the value of x. Before finding these value, you have to come on page number 216 and also 217 and on page number 219. As you can see that there are some tables given. This 216 page number have a table and also 217 also have a table, and on page number 219 there is also we have a tables. You have to learn these tables so you can easily solve the equations. How can you solve it? Let's go to our notebook and let's find the answer of these questions. Now let's start part number 1, which is root 3 upon 2. Root 3 upon 2. First solution, then we write cos x is equal to root 3 upon 2. Root 3 upon 2. After that we have to convert, we have to transfer cos there, and what we have here, we have only x here. X is equal to cos. Now we have cos here in positive, but when it transfer to another side, in the right side, which is right the equal side, the cos sign will become in negative. Will become in negative, and root 3 upon 2 is become same. तो रूट 3 अपॉन 2 जो है सेम रहेंगे और कॉस जो है ये किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी. अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और देखते हैं कि रूट 3 अपॉन 2 में जो कॉस की जो वैल्यू दी हुई है, ये देखें नेगेटिव है, सही है. और कॉस की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 30 दी हुई है, यहाँ पे क्या दी हुई है, 30 दी हुई है. इसी तरह अगर इस वाले टेबल में नहीं देखते हम, इफ़ वी डोंट लुक एट द टेबल डैश, so you can see on page number 217 we also have cos 30 degree value is root 3 upon 2, so that we can prove that the cos root 3 upon 2 is 3 upon 2 is equal to 30 degree. तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है किसके, 30 डिग्री के. इक्वल किसके है, 30 डिग्री के. अब चलते हैं अपने पार्ट 2 को सॉल्व करने की तरफ. पार्ट 2 1 अपॉन रूट 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है ना पूरे क्वेश्चन में हमें, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ कॉस x इज़, सही है. तो कॉस की सोल्यूशन लिख लेंगे. सोल्यूशन लिखने के बाद कॉस x इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, सही है, ये लिख लिया. अब क्या करेंगे, x को अलग कर देंगे, कॉस को ले जाएंगे राइट साइड पर. जब ये राइट साइड पे चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस में, और वो जो आपके पास बुक में यूँ ज़ीरो डाल के यूँ साइन लगाया हुआ है ना, उसका मतलब ही माइनस ही है. तो हम जो है माइनस को यूँ शो कर रहे हैं, माइनस का साइन डाल के, और 1 अपॉन रूट 2 हमने यहाँ पे यूँ शो कर दिया. तो हम अब देख लेते हैं कि ये 1 अपॉन रूट 2 की क्या वैल्यू है हमें जो दी हुई है. तो हम आते हैं बुक में, कॉस 1 अपॉन 2 रूट, क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, 45 डिग्री दी हुई है पेज नंबर 219 पे. तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, सही है जी. अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, इन विच वी हैव 1 अपॉन 2.
in this question we have 1 upon root 2, but in this part number 3 we have 1 upon 2. So we can solve that also. Cos with the same method, cos x is equal to 1 upon 2. We can transfer the cos there, cos, and it will become in minus. So we have cos minus 1 upon 2. Now we can look the value of 1 upon 2. Cos 1 upon 2 is equal to 1 upon 2. Cos 1 upon 2 is equal to 30 degree. And 1 upon 2. Okay, it is equal to 30 is equal to 60 degree. Now look, we have 1 upon 2 is equal to 60 degree. So 60 degree is our answer of x. So x is equal to 60 degree, and now it is our answer. You can copy this, or if you want, you can take a screenshot. Now let's forward to next question, which is question number 2. Now we have question number 2, in which we have to do the same thing but with 10y. Now find the value of y when the value of 10y is 10y की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम प्रोसेस होगा, इसे देखेंगे और जो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो चलिए, हमने यहाँ पे पहले से ही जो है ये लिखे हुए हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट वी राइट solution, then 10y is equal to root 3. Now separate the y and 10 transfer to another side of equal, and it become in minus, and root 3 will be same. Now y is equal to, we can find 10 root value. Now we will find the 10 root 3 value is 60. So we have our answer, which is 60 degree, and it is our answer. Now let's find this value, the number 1. 10 y is equal to 1. Separate the y, transfer 10 to right side of equal, and it will become in minus. Now it 1. Now y is equal to 10 1. Now we find in 10 minus 10 1. Now this value is 45 degree. So we have our answer, which is 45 degree. Now let's find the last one. Same process, 10y is equal to 1 upon root 3. Separate the y, and 10 will transfer to the other side of equal, and it will become in minus. 1 upon root 3 will be same. Now let's find my 10 minus 1 upon 3. 10 minus this is 10 minus 1 upon 3, and its value is 30. So we have our answer, which is y is equal to 30 degree, and it is our answer. Okay, now students, we have solved the question number 1 and question number 2. The both questions are the same, but the difference is only in cos x and 10y. Now let's forward to our next question, which is question number 3. Now students, we have our question number 3, in which and the question number 3 is find the value of measurement angle A when the value of cosec measurement angle A is. cosec measurement angle A की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल A को फाइंड करना है. तो सेम प्रोसेस होगा, बस जहाँ पे x और y आता था उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, मेजरमेंट एंगल A लिख देंगे, और cosec की वैल्यू जो है वहाँ से देख ले लेंगे. तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट जो हमने इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस किए वो भी इंशाल्लाह आपको फिर से समझ में आ जाएंगे. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं.
हम आते हैं अपनी नोटबुक की तरफ, और नोटबुक में हमने यहाँ पे ये लिख लिए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कॉसेक, हमारे पास क्या है कॉसेक। कॉसेक मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू है किसके 2/1 के इज इक्वल टू है किसके 2/1 के। मेजरमेंट एंगल ए को अलग कर लें, अलग कर दें, कॉसेक चला जाएगा इक्वल के उस तरफ और हो जाएगा माइनस में, और 2/1 रहेगा सेम ही। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू कॉसेक के कॉसेक माइनस के 2/1 में देखें या 2 में देखें, सही है, या 2 में देखें या 2/1 में देखें। तो कॉसेक 2 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 30। देखें 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 तो होता है, तो अगर हम 1 लगाएं या ना लगाएं बात सेम ही है। इसी तरह यहाँ पे भी 1 लगाएं या ना लगाएं बात सेम ही है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है तो हम काफ़ी बार उसको जो है हटा देते हैं। तो एज इट इज़ यही केस यहाँ पे हुआ है। कॉसेक माइनस में जब हमने 2 की वैल्यू में देखा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए कितना है 30 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए कितना है 30 डिग्री, और यही है हमारा इसका आंसर। अब आते हैं यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। कॉसेक मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2। तो मेजरमेंट एंगल ही तो हमने फाइंड करना है, तो इसे इस साइड ले आएंगे, इक्वल के लेफ़्ट साइड पे था। कॉसेक को जो है इक्वल के वहाँ पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में। जब माइनस में हो जाएगा तो ये एंगल ये हो गया 2। तो अब कॉसेक 2 कितनी है 45, सही है। √2 कॉसेक माइनस √2 इज इक्वल टू है किसके है 45 के। तो यही 45 जो है हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे क्या आंसर। इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। सेम पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एज इट इज़ एक ही तरह के हैं, बस आपने टेबल देखना है और प्रोसेस को फॉलो करना है। तो यही हो जाएगा कॉसेक मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 2√3, और मेजरमेंट एंगल को सेपरेट कर दें, अलग करके लिख दें, इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा, कॉसेक जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, और 2√3 2√3 की वैल्यू हम कॉसेक माइनस में देख लेते हैं। 2√3 की वैल्यू माइनस कॉसेक में कितनी है 60 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही जी। तीनों क्वेश्चंस को हमने कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेंदी भी है और उसमें स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस को हम करेंगे थोड़ा सा आराम से, और फिर आगे थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जैसे कि आपसे कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो देखें यहाँ पे अब इन्होंने सिन एंगल दिया हुआ है, साइन एंगल दिया हुआ है, साइन एंगल दिया हुआ है, कॉस एंगल दिया हुआ है और कॉस एंगल दिया हुआ है। मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि इन दोनों को किया दरम्यान में मल्टीप्लाई, और जब ये वाली वैल्यू आई तो वहाँ पे इसमें दरम्यान में क्या है प्लस का साइन है, वहाँ पे क्या प्लस का साइन है, सही है। अच्छा कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो फाइंड करें। तो ये यहाँ तक प्लस वाले, फिर यहाँ पे माइनस वाले शुरू हो जाएंगे, ये फिर प्लस वाला और ये फिर माइनस वाला हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। साइन 30 का एंगल क्या है, साइन 30 एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या है 1/2, उसकी वैल्यू क्या 1/2। तो ये जो साइन 30 है ना, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई का साइन। साइन 60 एंगल की क्या है, √3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √3/2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दें। cos 30 √3/2 cos 30 की सही है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 सही है। और cos 60 की ये है 1/2,
ये क्या है 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2। अब देखें यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें cos 60 इसका साथ का है और sin 60 जो है इसके साथ का, यानी कि ये दो वैल्यूज सेम है और ये दो वैल्यूज सेम है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन वाले सवाल ही हैं, जिस तरह से आपने बचपन में कुछ अरसा पहले ही आपने फ्रैक्शन वाले सवालों को सॉल्व किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वैसे ही ये भी सॉल्व होंगे। 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये √3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे आ जाएगा इसके, और 1 हम यहाँ पे शो नहीं करते, तो यहाँ पे क्या है 1 है लेकिन हम शो नहीं करते। 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने लगा दिया। 3 तो ये हो जाएगा वही √3 और 2 2 ज़ा 4। बेस सेम हो गई, सही है, बेस सेम हो गई तो एक बार लिख देंगे, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं हम। आम कंडीशन में हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दोनों में एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो हम बेस सेम थी तो हमने क्या कर दिया, एक बार लिख दिया। अब देखें ये √3 और ये √3, ये √3 प्लस हो रहा है इस √3 के साथ, सही है, ये √3 प्लस हो रहा है इस √3 के साथ। तो देखें मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2, और √3 है 2 बार तो एक बार हम लिख देंगे √3, सही है। √3 2 बार थे, एक बार लिख दिया क्योंकि सेम हो रहे थे, लेकिन इन दोनों 1 को कर लिया प्लस, तो ये हो गया 2 √3। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमारे पास यही कंडीशन बन जाएगी। मिला के लिखें तो इस कंडीशन में, अगर अलग अलग करके लिखें तो इस कंडीशन में, और ये नीचे हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, सही है। चलें थोड़ा खुला खुला करके किया ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो √3/2 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी, आसान चीज़ है, कोई इससे मुश्किल नहीं, और उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट कोई पार्ट नंबर 2 की तरफ। चले पार्ट नंबर 2 है तो इसे भी देख लेते हैं तफसीलन, यानी कि डिटेल में इसको भी हम देखें। कॉपी यहाँ से उठी जिसकी वजह से जिसका ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। तो देखें सेक 30 एंगल 30, तो सेक की तरफ आते हैं और इसका जो एंगल 30 है ये रहा, तो ये कितना है 2/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2/√3 मल्टीप्लाई कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी है 2/√3, तो इसकी कितनी है 2/√3, यानी कि दोनों की सेम है। वो दोनों अलग अलग लिखे हुए तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे एक साथ करके लिखे हैं। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम लगा देते हैं। 10 60 तो हो गया हमारे पास ये 10 और 60 कितनी है √3, तो ये हो गया √3, इसकी √3 है मल्टीप्लाई बाय इसकी भी √3 ही होगी। देख लेते हैं किस कॉट √3 ये रहा, कितनी है 30 है ना, ये कॉट एंगल 30 कितनी है √3 है, सही है जी। चलो अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। वही वाली कहानी, 2 और 2 हो जाएगा 4, 3 और 3 बेस सेम है तो एक बार लिख देते हैं, लेकिन अब ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब किससे बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब भी सेम हो जाए और आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लस का साइन, ये दोनों भी सेम है तो बाहर आ गए किससे, रूट से। इसके नीचे कुछ नहीं है, पहले भी बात हो चुकी है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। 3 का और जब 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है 3 ही आएगा, हमारे पास क्या आएगा 3 ही आएगा। 4 और 3 को प्लस कर लें। अच्छा, एलसीएम लेने के लिए एक और तरीका ये होता है कि अगर ये जो इनका जो बेस है ना ये 3 आई है, सॉरी इनका जो डिनोमिनेटर है एलसीएम लेने के बाद 3 आया, तो इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आ गई। डिनोमिनेटर को जब आपस में हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 3। अब इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, सॉरी 3 बन जाएगा।
तो जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है मेरा बच्चा, न्यूमिनेटर भी उससे मल्टीप्लाई होता है। सही है, न्यूमिनेटर भी उससे मल्टीप्लाई होता है। ये बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो 4 1 ज़ा 4, दरम्यान में प्लस का साइन, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। बकाया यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली लाइन गलती से लग गई थी। तो ये हो गया 12, सॉरी 9 10 11 12 13, तो ये हो गया 13 और ये हो गया 3। अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे? मिक्स फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रफर कर लेते हैं मिक्स फॉर्म का। देखें, मिक्स फॉर्म का तरीका ये होता है कि ये जो है ये आएगा बाहर, डिवाइड करेंगे, और जो ऊपर वाला है यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो जाएगा अंदर। तो 3 के टेबल में 13 नहीं आता, लेकिन 4 से हमारे पास आता है 12, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 1। अब इसको गोल चक्कर कर दें, यानी कि सर्कल कर दें। ये उसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। मिक्स फॉर्म बनाने के लिए इस तरह से करते हैं। तो क्या हुआ, ये 1 ऊपर चला गया, ये 4 आ गया यहाँ पे, और 3 आ गया नीचे। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है जी। अगर थोड़ी मुश्किल हुई हो आपको ये देखने में तो काइंडली जो है इसको दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको इस समझ में आ जाएगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा इससे मुश्किल भी, बाकी सारे आगे ईजी हैं। तो पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, और ये लास्ट पार्ट है हमारा, जिसमें हम आपको ये वैल्यू देख के बताएंगे टेबल से। बाकी किसी में भी वैल्यू देख के नहीं बताएंगे, आपको तरीका अब आ गया होगा, अब आप खुद देखेंगे। तो cos 30 एंगल, cos ये रहा 30 एंगल कितनी है? √3/2। सही है, 30 एंगल √3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री और sin 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का साइन cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री के कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, और sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का कितना है? 2/√3। सही है, 2/√, ये रहा 2/√3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2/√3। सही है जी। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए जी, अब देखते हैं इसे दोबारा से। ये देखें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, ये प्लस का साइन आ गया। ये 2/3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब 1 को 3 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 ही हमारे पास आ जाएगा। √3 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, प्लस का साइन है और नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको आपके लिए सॉल्व भी कर देते हैं। देखें, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो मेरा बेटा इसका एलसीएम आएगा 4√3, यानी कि 4 का 4 आएगा और √3 का √3 आएगा। अब आप मुझे बताएं, इस 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से भी साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अब ये जो रूट है, इसको 3 बनाने के लिए इसको किस से मल्टीप्लाई करें हम? तो ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और √3 से भी मल्टीप्लाई होगा। सही है, ये 4 और √3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 4 इस 4 से और √3 से पूरे से ये मल्टीप्लाई होगा। सही, जिससे ही पूरे से मल्टीप्लाई ये होगा। डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमिनेटर भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4√3 और मल्टीप्लाई बाय 4√3। ये √3 और ये √3 क्या है? सेम है, तो हम लिख लेंगे सिर्फ 3। सही है। और 4 के लिए तो 1 आया था, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ पे 1 ही हम रहने देते हैं। चलें, ये हो गया प्लस का साइन डाल देते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, ये रूट और ये रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये रूट और ये रूट हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और ये 4/√3 एज इट इज़ यही रहेगा। 4/√3 एज इट इज़ यही रहेगा। या
सही है, 4/√3 ऐसे ही रहेगा। सही है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कर लें इन दोनों को प्लस, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये हो गया 19 4/3 √3। अब यहाँ से आगे जो हम प्रोसेस करेंगे ना वो हम कहते हैं कंजुगेट करना। क्या कहते हैं? नाउ कंजुगेट। नाउ लिख लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम क्या कह रहे हैं। कंजुगेट। कंजुगेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कर लेते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना यही एक बार मल्टीप्लाई भी होगा और एक बार जो है वो ये वाला, ये तो हमने सॉल्व कर ली, ये वाला, ये डिनोमिनेटर एक बार मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड भी होगा। कैसे होगा देखें, 19 4√3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 से और यही डिवाइड हो जाएगा 4√3 से। तो ये मतलब है कंजुगेट करने का। क्या मतलब, ये डिनोमिनेटर है ये रूट इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और इससे डिवाइड भी हो जाएगा, इससे हम कहते हैं कंजुगेट करना। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 76 और इधर है √3 तो √3, यानी कि 19 को 4 से और इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 से जो मल्टीप्लाई किया 76 आ गया और √3 का √3 आ गया। अच्छा जी, 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया है ना, करें 4 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ गया 16। सही है, और ये रूट मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 3 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 3 आ गया। चलें नेक्स्ट। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे यहाँ पे 19 टाइम और 4 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे 4 टाइम। तो हमारे पास वही कंडीशन बन गई 19√3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मज़ीद यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 19√3 4 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ तो ये हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही है, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी इन चीज़ों की। चलें जी, तो ये हमने कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, जब थोड़ी सी स्पीड हम पकड़ेंगे। चलिए जी, हमने इसके लिए वैल्यूज़ लिख ली हैं, बस अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 को इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो √3 ही आ जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√2, दरम्यान में माइनस का साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब ये देखें आपस में एलसीएम होंगे, जब एलसीएम होंगे ना आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये कट जाएगा इसके साथ और ये कट जाएगा इसके साथ। जैसे कि हमने ऊपर जो कंजुगेट से पहले हमने जो ये वाला काम किया था ना, इसी तरह का यहाँ पे जब काम होगा तो ये आपस में सारे कट जाएंगे। जब सारे क्या कट जाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा क्या, =0। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन टाइप पार्ट नंबर 4। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ, 5 की तरफ। चलें, ये है पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वही कंडीशन, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 को √3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया, दरम्यान में माइनस का साइन। और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और दोबारा वही काम होगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ इससे डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से ये 3 निकाले तो आ गया माइनस का 1 और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 6। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही, एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा। चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला काम कैसे हुआ था। देखें, जब हम एलसीएम लेंगे 2 का और 3 का तो हमारे पास कैसे 6 आएगा। देखें, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 हमने छोड़ दिया 3। अब 3 1 का 1 और 3 1 3, तो 2 3 6। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 6। सही है, इसी तरह जो हमने इसको सॉल्व किया था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 को भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे परेशान ये हो रहे हैं कि जब यहाँ पे प्लस आता है तब भी यही वाला काम होता है और जब माइनस आता है तब भी यही वाला काम होता है। तो देखें, जब भी जब हम फ्रैक्शन में सवाल करते हैं प्लस या माइनस आ जाए तो हम नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम ही लेते हैं। इसलिए प्लस कर दें या माइनस कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस का काम जो है बिल्कुल लास्ट में आता है। तो ये भी √2 है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंगल लिखा जाएगा, प्लस 2 2 4 √3 और 3, तो ये आपस में आ गया 3।
कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को जब 3 से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा। और कर लेते हैं इसे, यहाँ पे 1 है तो इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया और इसका न्यूमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका न्यूमिनेटर भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 1 ज़ा 4, दोनों को प्लस कर लें तो ये आ गया हमारे पास क्या, 10/3, 10/3। इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स फॉर्म का तरीका वही है जो आपको बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिक्स फॉर्म में करने के बाद वो हो जाएगा 3 1/3। वजह क्या है कि 3 जाएगा बाहर, 10 जाएगा अंदर। 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 ऊपर लिखा जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा 3, वो आ जाएगा इधर, और रिमाइंडर हमारा बचा 1 तो वो चला गया ऊपर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। देख लेते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 7 को। पार्ट नंबर 7, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, दरम्यान में माइनस का साइन। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, √3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। वही वाला काम होगा फिर से कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, तो 3 हम लिख लेते हैं नीचे। इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इस 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर भी उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 1 ज़ा 2 -2, तो 2 में से 2 गया, आ गया 0/3, सही है। और तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0 हुआ हमारा क्या आंसर, 0 हुआ हमारा आंसर। चलो जी, पार्ट नंबर 7 भी हमने कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos x, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू cot x, sec x इज इक्वल टू cos 49। तो ये हमें 9 केसेस दिए हैं और कहा है कि इनकी जो वैल्यूज़ है ना, जो x की वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यू, 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 ये फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने से पहले एक चीज़ आपने जहन नशी करनी है, वो क्या है, आपने जहन में यू हैव टू मेमोराइज इट, आपने उसको याद करना है। वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है कि 2 एंगल कितने डिग्री के इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये बात जान लीजिए कि sin cos, cosec sec, tan और cot ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कौन सा एंगल है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो फॉर एग्जांपल अगर sin दिया हुआ है 60 तो sec कितना होगा, 30 होगा। tan दिया हुआ है 60 तो ये कितना होगा, 30 होगा। cosec दिया हुआ है 30 तो sec कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो एज इट इज़ यही जो है हमने यहाँ पे भी करना है। तो पहले 2 थोड़े ध्यान से आराम से करेंगे, बाकी में स्पीड पकड़ेंगे, जैसे कि आपको पता है हम जो काम करते हैं। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यही है, sin किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है, और cos x मालूम करना है। तो जब ये 30 डिग्री के एंगल है तो cos x किसके एंगल होगा, sin 30 डिग्री। तो cos जो इक्वल होगा वो होगा किसके डिग्री के, 60 डिग्री के एंगल हो इक्वल होगा। तो x इज़ इक्वल टू किसके हो गया, 60 डिग्री के इक्वल हो गया। बात समझ में आ गई ना। जब ये 30 के है तो ये किसके होगा, 60 के होगा। इसी तरह tan 60 को देख लेते हैं। तो tan 60 डिग्री के एंगल है तो cot x किसके इक्वल होगा, देख लेते हैं। tan 60 डिग्री के इक्वल है तो cot होगा 30 डिग्री के इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू हो गया कितना, 30 डिग्री के, सही है। 90 में से 60 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ये और ये हो गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, sec x इज़ इक्वल टू cosec 45 डिग्री, सही है जी। तो cosec 45 डिग्री का है तो sec कितने डिग्री का होगा, ये हो जाएगा हमारे पास भी 45 डिग्री का, ये भी हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री का, इज़ इक्वल टू cosec 45 डिग्री। तो x हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरह पार्ट नंबर इसके 4 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी एज इट इज़ यही होगा, cos x इज़ इक्वल टू sin 70 डिग्री। sin 70 का है तो ये कितने का होगा, 70 80 90 20 डिग्री का होगा, सही है। कितनी डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। तो cos
इज़ इक्वल टू 20 डिग्री और sin हो जाएगा इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू हो जाए कितने 20 डिग्री का। ये हो गया इसका आंसर। सही है। अब आ जाते हैं पेज पार्ट नंबर 5 पे और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक है 40 डिग्री का इज़ इक्वल टू कॉस सेक इज़ इक्वल टू है फ़िलहाल x के। तो सेक 40 इज़ इक्वल टू 50 60 70 80 90 50 का बनेगा जी, 50 का बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 में हमारा बन जाएगा कितने का 50 का। तो कॉसेक हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। तो x हो गया हमारे कितने का 50 डिग्री के बराबर का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट x इज़ इक्वल टू 10 45 डिग्री। तो कॉट कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा और 10 भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो x हमारा हो गया कितना 45 डिग्री का। x हमारा हो गया 45 डिग्री का। इस तरह इसके पार्ट नंबर 7 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में कॉसेक है जो कि इक्वल है 10 डिग्री के और सेक के साथ लगा हुआ है x। तो कॉसेक 10 इज़ इक्वल टू सेक हो जाएगा हमारा 80 डिग्री का। तो x हो जाएगा हमारा कितने डिग्री का 80 डिग्री का। x हमारा हो जाएगा 80 डिग्री का। इसी तरह इसको देख लेते हैं। 10 x इज़ इक्वल टू कॉट 65 डिग्री। ये 65 का है तो 10x जो है हमारा वो हो जाएगा 25 का। तो 25 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉट 65 डिग्री। इसमें से इसको कर दें माइनस, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 20, यानी कि 90 में से 65 को माइनस कर दिया तो x इज़ इक्वल टू हो गया 25 डिग्री का। सही जी। लास्ट पार्ट नंबर 9। sin x इज़ इक्वल टू cos 35। तो sin हमारा हो जाएगा 55 का 55 डिग्री का इज़ इक्वल टू cos 35 डिग्री। और तो हमारा जो x होगा x हमारा इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री के। सही। 5 और 5 40 50 60 70 80 सही है। 55 का या 45 का माइनस करके देख लेते हैं। ज़्यादा मैथ करने के बाद भी माइनस करके देख लेते हैं। तो 90 में से माइनस कर दें कितने 35, तो हमारे पास क्या आएगा 55। सही है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही है जी। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एज इट इज़ है, लेकिन इसमें क्या बस फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। साइन 35 डिग्री का तो कॉस कितने का होगा, tan 65 का तो कॉट कितने का होगा, सेक 420 का तो कॉसेक कितना होगा। इसी तरह 6 की 6 दी हुई हैं। तो ये 6 की 6 हमने यहाँ पे लिख ली हैं और हम जो है इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अभी सारी बात होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे तो जितने का ये है उसको 90 से माइनस कर दें, यानी कि 90 माइनस हो जाएगा 35 से। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 55 डिग्री का। इस तरह tan 65 का है तो ये हो जाएगा हमारा 25 का। सही है। और सेक 20 का है तो कॉसेक हो जाएगा 70 का 70 डिग्री का। ये 53 का है तो वो हो जाएगा 37 का। ये 56 का है तो वो हो जाएगा 34 डिग्री का। डिग्री लगा दें सब पे। और 75 का है तो वो बन जाएगा 15 का 15 डिग्री का। सही हो जाए। और ये हो जाएगा इसके पूरे का आंसर। तो उम्मीद है कि आपने इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझा होगा और कोशिश ये की है कि आधे घंटे से पहले ख़त्म हो जाए, लेकिन हो ना सकी तो 40 मिनट्स तो तकरीबन हो ही गए। तो ये हमारे लास्ट यूनिट चल रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम यूनिट्स को जो है वो कर लिया है सॉल्व। सिर्फ एक गालिबन एक्सरसाइज रहती है, वो इंशाल्लाह वो भी उसकी वीडियो भी जल्दी आपके पास आ जाएगी। यूनिट 10 में एक एक्सरसाइज रहती है हमारी। तो हाँ, पढ़ाई में मेहनत करें, अच्छी तरह मेहनत करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।